Genius, 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 genius gone. Genius, 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 genius gone. Every book you read adds a millimeter to your mental horizon. With this famous line of great scientist and scholar Dr. Lala Hardayal, I congratulate all the participants present here under the banner of Sanskrit Production and Abhi Tak channel. Once again, Sanskrit Production has come before us with all its glory and glamour, and I welcome all the participants here who have come to this particular round of quarter final after showing their genius among thousands of students who appeared for the test of Genius Con सीजन 3। इस मंच पर पधारे हुए सभी प्रतिभागियों का मैं संस्कृति प्रोडक्शन की ओर से हृदय से सादर अभिवादन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सभी प्रतिभागी मुरादाबाद मंडल के लगभग 83 विद्यालयों से इस प्रतियोगिता में appeared and just showed their genius. So you are the lucky ones, the 36 contestants who came as victorious out of those thousands of students that appeared for the test. And now among those 36 students, you 6 students are here just on the stage of Abhi Tak channel under the banner of Sanskrit Production, and it is Genius Con सीजन 3। मैं सभी प्रतिभागियों के साथ पधारे हुए उनके अभिभावकों और हमारे बीच में पधारे हुए हमारे मेहमान लोगों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इससे पहले कि मैं आप लोगों को इस प्रतियोगिता के नियम और दूसरे चीज़ों से परिचित कराऊं, मैं चाहूँगा कि सभी प्रतिभागी एक एक करके अपने स्कूल का परिचय दें ताकि इस प्रतियोगिता को आगे की ओर शुरू किया जाए। सो आई रिक्वेस्ट कंटेस्टेंट नंबर 1 just to make our own introduction so that we should proceed on the process of Genius Con season 3. So the first participant who is there on the stage of Genius 3 is Mr. Ravi Kant, and he represented his school, St. Mary's Convent School, Dhampur. Hello, my name is Ravi Kant Singh. I am studying in class 12th in St. Mary's Convent Senior Secondary School, Dhampur. So now it is the turn of the second participant to introduce herself. हाय, मेरा नाम रीतू है। मैं शिव विद्या मंदिर चांदपुर में पढ़ती हूँ 12th क्लास में। हमारे मध्य दूसरे नंबर के प्रतिभागी रीतू हैं जो अपने चांदपुर के विद्या मंदिर का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो मेरा आग्रह है
प्रतिभागी नंबर 3 से कि वो अपना परिचय स्वयं दे। Hello, myself Azia Khan. I study in 9th class in Paras Public School from Afzalgarh. Wazir is representing her school, Paras Public School, Afzalgarh, to face the contestant of Genius 3 on this particular stage. So now it is the turn of contestant number 4 to introduce herself. Myself Pallavi Chauhan. I am studying 10th class in Marian School from Shahara. She is Pallavi from Marian Jesus School, Sohara, and she is representing her college here. So now, contestant 5, please introduce yourself before us. Myself Mohak Mittal from class 10. I am studying in school Lala Radhesham Academy from Nagina. From LRS Nagina is Mr. Mohak Mittal. And now it is the turn of the last contestant. अंतिम प्रतिभागी अपना परिचय हम सबके समक्ष रखें. Hello, my name is Bhumika Sani from class 10C and I am studying Shikha Shishu Sadan Senior Secondary School, Dhampur. Now the last contestant, she is Bhumika Sani and she is representing Shikha Shishu Sadan Senior Secondary School, Dhampur. So all the contestants are welcome on the stage of Genius 3. So I just welcome them. So after this introduction session of all the participants who are present over here on the stage, so I would like to introduce you with all the rules and regulations. इस प्रतिभागी जो हमारे इस मंच पर पधारे हुए हैं, इन सबको आवश्यक है मैं इस प्रतियोगिता के नियमों से परिचित कराऊं. इसमें सबसे पहला राउंड क्वार्टर फाइनल राउंड जिसमें आप लोग सब पधारे हुए हैं, उन सभी हजारों प्रतिभागियों में से 36 प्रतिभागी चुने गए जो 6-6 के ग्रुप्स में क्वार्टर फाइनल में यहाँ पर अपनी विद्वता का परिचय एक एक करके दे रहे हैं. आफ्टर दिस सेशन क्वार्टर फाइनल, out of 36 contestants, only 18 contestants will be selected to move to the second round. It is a semi-final round. So 3 rounds of 6 contestants each will be there in semi-final. उसके बाद उन 18 प्रतिभागियों में से केवल 6 प्रतिभागी चुने जाएंगे जो उससे अगले प्री फाइनल स्टेज पर पहुंचेंगे और उन 6 प्रतिभागियों से अंत में ओनली द 4 पार्टिसिपेंट विल बी सेलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द फाइनल राउंड ऑफ दिस जीनियस कॉन सीजन 3 एंड दे वुड बी द लकी वन अमंग whom 3 participants who will be declared as first, second, third in the last round, they will be there in the final round. So that is the stage I have told you. ये 4 इसके स्तर होंगे और ये पहला स्तर है जिसमें आप सब लोग यहाँ मंच पर विराजमान हैं. इसके नियम आगे मैं आपको बताता हूँ कि only 15 questions will be asked to you people. The questionnaire consists of 15 questions. आपसे 15 प्रश्नों की एक प्रश्नावली पूछी जाएगी और हर प्रश्न के 4 उसमें ऑप्शन होंगे, 4 विकल्प होंगे. आपको उसमें से सही विकल्प चुनकर उत्तर देना है. If you come to the right option, you will gain 20 points. But if unfortunately you make the wrong answer to the question, you will have to lose 10 points. सही उत्तर देने पर आप अर्जित करेंगे 20 अंक, लेकिन गलत उत्तर देने पर आपको खोने पड़ेंगे 10 अंक. प्रत्येक प्रश्न पूछने के बाद उसके ऑप्शन बताने के बाद मैं आपसे बोलूँगा आपका समय शुरू होता है अब. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. मेरे अब ये नाउ कहने के बाद ही आप बजर दबाएंगे. सबसे पहला प्रतिभागी जो सबसे पहले बजर दबाएगा उसी को उस प्रश्न का उत्तर देने का अवसर प्राप्त होगा. अगर किसी प्रतिभागी ने मेरे निर्देश से पहले बजर दबाया तो उसको 10 अंक खोने पड़ेंगे. यह बात हमेशा आप अपने दिमाग में रखें. मेरे प्रश्न बोलते ही आप सब अपने मॉनिटर स्क्रीन्स को देखें और सबकी उंगली अपने अपने बजर पर रहनी चाहिए. एंड यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, वेरी प्रॉम्प्ट. एज सून एज से योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, मेरे नाउ कहते ही आपको तुरंत बजर दबाना है ताकि आपको उस प्रश्न का उत्तर देने का सुअवसर प्राप्त हो. सो दैट इज द प्रोसेस दैट विल गो ऑन थ्रू आउट दिस राउंड ऑफ क्वार्टर फाइनल जीनियस कॉन सीजन 3. सो वन बाय वन you have to come forward and at the same time sometimes you have to take risk just to come to the right point, and every one of you will be ready to gain more and more points so that you might go to the second round semi-final. तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले मैं आपको सभी बेस्ट ऑफ लक कहकर इसके लिए अभिनंदन करता हूँ. अब मैं आपके समक्ष
इस 15 प्रश्नों की प्रश्नावली का पहला प्रश्न रखने जा रहा हूँ. सो ऑल ऑफ यू बी अलर्ट, बी अटेंटिव एंड बी प्रॉम्प्ट टू पुट द बजर एंड मेक योर आंसर. सो विश यू बेस्ट ऑफ लक and the first question appears on your monitor screens. So please be alert now. It is the very first question. Who is the chairman of Rajya Sabha? Look at your monitors. The question is, who is the chairman of Rajya Sabha? 4 options of these questions are A. President, B. Vice President, C. Speaker, D. Governor. These are the 4 options of the question. Who is the chairman of Rajya Sabha? And the Hindi version of the question is राज्य सभा के अध्यक्ष कौन हैं? You have to put the answer of this question. और आपके सामने 4 विकल्प हैं. A. राष्ट्रपति, B. उपराष्ट्रपति, C. स्पीकर, D. राज्यपाल. ये 4 ऑप्शन हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं. और आपका समय शुरू होता है अब. यस, इट इज द वेरी फर्स्ट कंटेस्टेंट that is come forward, Mr. Ravikant. He has put the buzzer, so he has got the chance to make the answer very first time. So Mr. Ravikant, आपके बुद्धि ज्ञान के अनुसार इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप हमें बताएं. So it's B, Vice President. According to Ravikant, ऑप्शन B is correct. उनके अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं. देखते हैं कि रविकांत का ये प्रयास कहाँ तक सफल होता है. सो वी मूव टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज यस, ही इज वेरी राइट टू से लाइक दैट. उन्होंने जो बी इसका ऑप्शन बताया, विकल्प बी बिल्कुल सही है और ये सही उत्तर देकर रविकांत जी ने अर्जित किए हैं 20 अंक. सो एज इट इज द प्रॉवर वेल बिगिन हाफ डन. सो ही हैज स्टार्टेड the very first question with the correct answer और उन्होंने ये आंसर देकर he has earned 20 marks about that. So before coming to him we move to the second question. अब आपका ध्यान होना चाहिए आपके मॉनिटर स्क्रीन पर. हम बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न की ओर और दूसरा प्रश्न है When is World Soil Day observed? The question is when is World Soil Day observed? And the options are 1. 5th December, B. 2nd December, C. 15th December, D. 3rd December. और इसका हिंदी रूपांतर इस प्रश्न का है विश्व मृदा दिवस. विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? सॉइल डे. एंड दी 4 ऑप्शंस आर A. 5 दिसंबर, B. 2 दिसंबर, C. 15 दिसंबर, D. 3 दिसंबर. ये 4 दिवस हैं. आपको सोचकर बताना है कि इन 4 दिवसों में से कौन सा दिवस विश्व मृदा दिवस के रूप में जाना जाता है. और आपका समय शुरू होता है अब. यस, वेरी गुड. सो नाउ इट इज द टर्न ऑफ कंटेस्ट नंबर 3 एंड शी हैज अटेम्प्टेड टू मेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वजिया खान. सो वजिया, आई जस्ट आस्क यू विच ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू is regarded as the correct option of this very question. I think option A, 5 दिसंबर. वाजिया कहती हैं कि 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है. बहुत अच्छा उनका प्रयास है. देखते हैं कि उन्होंने अपने प्रयास से कितने अंक पाए, ये इनके उत्तर से जानकारी होगी. इस प्रश्न के उत्तर की ओर बढ़ते हैं और द करेक्ट आंसर इज 5 दिसंबर. यस, शी इज वेरी राइट टू मेक द करेक्ट आंसर and it's very good that first 2 questions has been answered very correctly. 5 दिसंबर ये विश्व में मृदा दिवस सॉइल डे के रूप में मनाया जाता है और वाजिया ने सही उत्तर देकर 20 अंक अर्जित किए हैं. तो वाजिया के लिए एक बार फिर तालियां. वाजिया, आपने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया. मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो यह मृदा दिवस छांटा, तो क्या आपका जीके में या जीके के साथ किसी और विषय में कोई विशेष रुचि है? हमें अपनी जानकारी दें. एक्चुअली सर, हमारी स्कूल डायरी है जिसमें सब ये नेशनल डेज लिखे जाते हैं, तो मैं कभी फ्री टाइम्स में इसे पढ़ लेती हूँ. तो उसमें भी ये आया था कि वर्ल्ड सॉइल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो मैंने उसी में से ही पढ़ा था. तो जगह जगह आपके
क्लासेस में लिखा रहता है, बाहर भी लिखा रहता है, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। और ये हम वी जस्ट एक्वायर दिस नॉलेज थ्रू डिफरेंट वेज। कभी पढ़कर ज्ञान अर्जित करते हैं जैसे आपने किया। डायरीज में आप देखें, डायरी में बहुत कुछ लिखा रहता है, आपकी प्रेयर्स, उसके अलावा बहुत कुछ लिखा रहता है। और जो अच्छे विद्यार्थी हैं और अच्छे गार्जियंस हैं वो अपने बच्चों की डायरी ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें वो देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो विद्यालय से और ज्ञान से संबंधित हैं। बहुत अच्छा लगा कि आपकी बड़ी पैनी दृष्टि है और आपने इस प्रकार से उस डायरी को पढ़कर उसके मार्फत आपने उस ज्ञान को अर्जित किया और उसके आधार पर आपने 20 अंक अर्जित किए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस क्वेश्चन। अब आपका ध्यान आपके मॉनिटर स्क्रीन पर होना चाहिए। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है यह, हु हैज टॉप्ड द रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट फोर्ब्स 2019। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। हु हैज टॉप्ड द रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट फोर्ब्स 2019 एंड द ऑप्शंस आर ए मुकेश अंबानी, बी जेफ बेजोस, सी अजीत मोहन and D Larry Page. So now the Hindi option or the Hindi version of this question is real time billionaires list Forbes 2019 में किसने टॉप किया है। It is a list of Forbes and that tells about the billionaires of the world. इस लिस्ट में 2019 में किसने टॉप किया है और इसके ऑप्शंस हैं आ मुकेश अंबानी, बा जेफ बेजोस, सा अजीत मोहन और द मैरी पेज। सो यू हैव टू मेक द करेक्ट ऑप्शन। आपको छांटना है कि इस लिस्ट में 2019 की फोर्ब्स लिस्ट में कौन सर्वोपरि रहा। इन 4 ऑप्शन में मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस, अजीत मोहन एंड मैरी पेज, लैरी पेज। एंड देन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, वंस अगेन इट इज मिस्टर रविकांत, द पार्टिसिपेंट नंबर 1 हु हैज पुट द बजर फर्स्ट। तो लगता है कि उनको इस उत्तर को देने में बड़ा कॉन्फिडेंट हैं, इसीलिए उन्होंने बहुत जल्दी इसको बजर को दबाया। मिस्टर रवि, आपसे सब जानना चाहेंगे कि आपके विचार से इस फोर्ब्स की 2019 की लिस्ट में कौन सर्वोपरि रहा इन 4 ऑप्शन में। I think it's B, Jeff Bezos. यस, रवि बोलते हैं कि उनके विचार से फोर्ब्स 2000 लिस्ट की 19 की लिस्ट में जो टॉप बिलियनर्स रहे वो बी ऑप्शन है, मिस्टर जेफ बेजोस। देखते हैं कि रवि ने अपने प्रयास में कितनी सफलता पाई है इस प्रश्न का सही उत्तर देने में। सो वी मूव टू द आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन। लेट्स सी। सॉरी रवि, द करेक्ट आंसर इज ए मुकेश अंबानी, द बिलियनियर ऑफ इंडिया एंड यस टॉप द लिस्ट ऑफ फोर्ब्स 2019। ये जो फोर्ब्स ऑर्गेनाइजेशन है ये हर वर्ष विश्व के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं उनकी लिस्ट बनाते हैं और इस फोर्ब्स की 2019 की लिस्ट में द नेम दैट कम्स टू द टॉप ऑफ द लिस्ट इट इज़ मुकेश अंबानी फ्रॉम इंडिया। ये इस लिस्ट में सबसे ऊपर रहे उन अरबपतियों की श्रेणी में। सो सॉरी टू से दैट आफ्टर गिविंग द correct answer at first, now you have made the wrong answer and that's why you have lost 10 points, 10 marks of that. No problem, still the questionnaire is very long. अभी कई प्रश्न की सूची बाकी है, आप उसमें सही उत्तर दें और अधिक से अधिक अंक अर्जित करें। ये फोर्ब्स की लिस्ट के बारे में रवि आपने कहीं पढ़ा था, कोई आपकी जानकारी इस विषय में? Yes sir, I knew it gives ranking according to the richest person. So I thought it's B, Jeff Bezos. That's very good. That's very good. So just next time you just keep your memory sharp by keeping the correct answer in your mind. Yes. No problem. No problem. आगे बढ़ते हैं. So now it is the third question of this questionnaire. Please be alert to your monitor sets. So now we move to the next question, the fourth question of this questionnaire, and the question is, who among the following has become the fastest man to reach 7,000 test runs? The question once again, who among the following names have become the fastest man to reach 7,000 test runs? And the 4 options are A.
चेतेश्वर पुजारा, बी हैनरी निकोलस, सी विराट कोहली and D Steve Smith. These are the 4 options. And now we come to the Hindi version of this question. इसका हिंदी वर्जन है इस प्रश्न का। निम्नलिखित में से कौन 7000 टेस्ट रन तक पहुंचने वाला सबसे तेज आदमी बन गया है, सबसे तेज बैट्समैन बन गया है? निम्नलिखित में कौन जिसने 7000 टेस्ट रन सबसे तेजी से बनाए? और उसके 4 ऑप्शंस हैं। ए चेतेश्वर पुजारा, बी हैनरी निकोलस, सी विराट कोहली और डी स्टीव स्मिथ। अब आपको देखना है कि इन 4 में से आपके विचार से, क्योंकि क्रिकेट बहुत पॉपुलर एक गेम है और आजकल यंगस्टर्स आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड टू प्ले क्रिकेट, सोचिए, देखिए और बताएं कि इन 4 में से कौन वो व्यक्ति है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वंस अगेन it is Mr. Ravi, the participant number 1. I think he also has a very keen interest in this cricket game. So Ravi, आपने क्योंकि बजर दबाया है तो आप से जानना चाहेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर, सही ऑप्शन आपके विचार से ABCD में से कौन सा है? Sir, I think it's C, विराट कोहली। रवि बोलते हैं कि उनके विचार से ऑप्शन सी विकल्प विराट कोहली वो क्रिकेटर हैं जिन्होंने सबसे तेज गति से 7000 टेस्ट रन बनाए हैं। देखिए, लगता है कि बहुत इंटरेस्ट रखते हैं उसमें, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि उनका ये इंटरेस्ट क्रिकेट में कहाँ तक उनको अंक दिलाने में सफलता पाता है या नहीं। सो वी मूव टू द आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन एंड द आंसर इज, करेक्ट आंसर इज, इट इज ऑप्शन डी, स्टीव स्मिथ. Steve Smith is the cricketer who has secured the fastest 7000 test runs. ये जिसने सबसे तेज गति से 7000 टेस्ट रन बनाए हैं वह है स्टीव स्मिथ. सो रवि, in spite of your best efforts you could not make the correct answer to the question. प्रयास आपका बहुत सराहनीय था, आपने बहुत विश्वास के साथ बजर दबाया और साथ साथ इस प्रश्न का उत्तर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से ये उत्तर सही नहीं रहा और इस कारण आपको 10 अंक खोने पड़े. क्या हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या इसमें क्रिकेट खेल में विशेष रुचि है जो आपने इस प्रश्न का उत्तर इतनी तेजी से दिया? No sir, actually I have not that much interest in cricket, but recently India won test, so I thought Virat Kohli made some record, so I was confused between it. No problem, because when it's a question of making the correct answer, so sometimes in spite of knowing the correct answer we are a bit confused, and that particular state of confusion we make the wrong answer. No problem. ये जैसे कहा जाता है, अक्सर सुनने को मिलता है, गिरते हैं सहसवारी मैदान जंग में, तो जो प्रयास करेगा वही जीतेगा और वही हारेगा भी. आपका प्रयास बहुत सराहनीय है और नेक्स्ट टाइम अपनी स्मृति को थोड़ा सा और शार्प करेंगे और जो करेक्ट ऑप्शन है वही अपनी स्मृति में सजा कर रखेंगे ताकि भविष्य में सही उत्तर देने की आपको ज़रूरत हो. सो थैंक यू सो मच. सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चनर एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन मॉनिटर सेट्स इज, प्लीज बी अटेंटिव नाउ. इस प्रश्नावली का अगला प्रश्न आपके मॉनिटर सेट पर, व्हेन इज वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व? व्हेन इज वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व? अगेन the second question based on date. So the 4 options are A 3rd December, B 2nd December, C 1st December and D 30th of November. These 4 dates are there. So you have to tell which is the correct date of World AIDS Day. इसका प्रश्न का हिंदी रूपांतर है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस, everybody knows about this disease AIDS. विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आर, आ 3 दिसंबर, बा 2 दिसंबर, सा 1 दिसंबर, दा 30 नवंबर. इन 4 में से आपको छांटना है इस दिवस की सही तारीख. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. ये 4 आपके सामने ये तारीखें दे रखी हैं, डेट्स हैं 3rd दिसंबर, 2nd दिसंबर, 1st दिसंबर एंड 30th नवंबर. इन 4 में से एक सही तारीख है जो जिस दिन
विश्व में एड्स दिवस मनाया जाता है? ये अपने आप में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डे है, और ये बीमारी क्योंकि अभी तक विश्व में इसको लाइलाज बीमारी घोषित कर रखा है। दैट्स वेरी नाइस। इट इज कंटेस्टेंट नंबर 6, इट इज भूमिका सैनी, एंड दैट्स वेरी नाइस दैट contestant number 6 has come forward to make the answer of this question. भूमिका ये क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एड्स अपने आप में एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है, और अभी दुनिया में सभी साइंटिस्ट इसके पीछे पड़े हैं कि कोई इसका कोई ऐसा ड्रग खोजा जाए जिससे बीमारी का नाश किया जाए। तो आपको बताना है कि इन 4 दिनांक 4 तारीखों में से कौन सी तारीख विश्व एड्स दिवस की है, आप बताएं। It's D, 30 November. Bhumika says that 30th November is the dates to celebrate this World AIDS Day, विश्व एड्स दिवस। भूमिका के अनुसार 30 नवंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। भूमिका का अच्छा प्रयास है। देखते हैं कि भूमिका का प्रयास कहाँ तक उनको अंक दिलाने में सफल होता है। एंड नाउ वी मूव टू द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन, एंड द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन सी, इट इज 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को पूरे विश्व में एड्स दिवस मनाया जाता है। सो भूमिका, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बट यू हैव मेड द रॉन्ग आंसर, दैट इज आंसर नंबर डी, 30 नवंबर। सॉरी टू से कि आपने गलत उत्तर देकर 10 अंक खोए हैं, लेकिन प्रयास सराहनीय है। आगे ही बढ़कर कभी रिस्क लेकर भी आंसर दिया जाता है। तो अभी बहुत से प्रश्न इस प्रश्नावली में शेष हैं। कोशिश करती रहिए और अच्छे से अच्छे अंक पाएं अगली बार। सो नाउ वी मूव टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने मॉनिटर स्क्रीन पर देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। विच कंट्री इज होस्टिंग द 2019 साउथ एशियन गेम्स? द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन गेम्स। विच कंट्री इज होस्टिंग द 2019 साउथ एशियन गेम्स? एंड 4 ऑप्शंस आर A. India, B. Nepal, C. Japan, D. China. These are the 4 countries in which in one country the South Asian Games are going to be hosted. So now we come to the Hindi option. कौन सा देश 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी कर रहा है? इट्स द क्वेश्चन कि कौन सा देश 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी कर रहा है। उसके 4 विकल्प हैं। आ भारत, बा नेपाल, सा जापान और द चीन। इन 4 देशों में से आपको बताना है कि कौन सा देश इस 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी कर रहा है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, वंस अगेन इट इज कंटेस्टेंट नंबर 6। भूमिका इज वंस अगेन प्लेइंग फॉरवर्ड। भूमिका ने बजर दबाया और इस प्रश्न का उत्तर देने का वो प्रयास कर रही हैं। भूमिका 4 देशों के नाम यहाँ दे रखे हैं, भारत, नेपाल, जापान और चीन। आप हमें बताएं कि आपके विचार से इसमें से कौन सा विकल्प, कौन सा ऑप्शन सही है? It's A, भारत। भूमिका बोलती हैं कि भारत 2019 में दक्षिण एशियाई खेल देशों की मेज़बानी करने जा रहा है। तो उनके अनुसार इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। देखते हैं और चाहेंगे कि भूमिका ने इसका सही उत्तर दिया हो ताकि वो इसमें अंक अर्जित करने में सफल हो। सो वी मूव टू द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज नेपाल। द करेक्ट आंसर इज बी, नेपाल। नेपाल इज गोइंग टू होस्ट दिस साउथ एशियन गेम्स इन द ईयर 2019। भूमिका प्रयास तो आपने किया, लेकिन वह प्रयास आपको अंक दिलाने में सफल नहीं हो पाया और इसीलिए आपने गलत उत्तर देने के कारण 10 अंक आपके माइनस होते हैं। आपने 10 अंक खो दिए। प्रयास करती रहें, शेष प्रश्नों में सही उत्तर देकर इन सब माइनस अंकों को प्लस में बदलने का पूर्ण प्रयास करें। भूमिका, आप अपने बारे में बताएंगे कि आपको एकेडमिक्स या एकेडमिक्स से अलग गेम्स, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें आपको विशेष रुचि है? I love dance because it's my hobby and I will participate in all programs which were organized by our school. On 13 December, our school organized
sports day, annual functions, in which we can not participate because due to study issues. But after 2 years Yes. ago, I will participate in dance and foundation day, in which was organized by our school. So nice, because these are the some fields: singing, dancing, music, games. These are some fields which have always been a focal point and very interested by the students of this particular up to 12th standard. So it's so nice that you are interested in dance. और भारत में तो आपने देखा होगा कि हमारे हर एक राज्य का एक विशेष नृत्य है, और आज से नहीं, प्राचीन काल से ही भारतवर्ष के वो राज्य अपने विशेष नृत्य के बारे में जाने जाते हैं. बहुत अच्छा है कि आपने इसको अपना एक विशेष रुचि का विषय बनाया है. आप भविष्य में भी इनमें प्रतिभाग करके अपने नृत्य कला का प्रदर्शन सबको करें, ये हमारी कामना है आपके लिए. इनके लिए तारीफ. So after Bhumika's this answer, we move to the very next question, and it is question number 7. So please be attentive to your monitor sets just to go through the question number 7. And the question is, who is the director of the film Golmaal series? Read the question attentively. Who is the director of the film Golmaal series? And the 4 options are A. Rohit Shetty, B. Sanjay Shetty, C. Aditya Chopra, and D. Sajid Nadiwal. These are the 4 options. और इसका जो हिंदी रूपांतर इस प्रश्न का, फिल्म गोलमाल सीरीज, ध्यान से पढ़िए, फिल्म गोलमाल सीरीज के निर्देशक कौन हैं? और इसके 4 विकल्प हैं: A. रोहित सेठी, B. संजय शेट्टी, C. आदित्य चोपड़ा, D. साजिद नाडियावाल. क्योंकि फिल्म भी वो एक क्षेत्र है जिसमें आज के युवा बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, तो मैं आप सबसे ये जानना चाहूँगा कि अपनी अपनी विद्वता का प्रदर्शन करते हुए अपना बजर दबाएंगे और इसका सही उत्तर देंगे. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. बी अलर्ट, प्लीज डोंट मेक योर बजर बिफोर आई कंप्लीट माय इंस्ट्रक्शन. सो वंस अगेन इट इज कंटेस्ट नंबर 6. भूमिका इज वंस अगेन देयर. भूमिका ने बजर दबाया है ताकि वो बता सकें इस प्रश्न का उनके विचार से सही उत्तर कौन सा है. प्रश्न है, भूमिका गोलमाल सीरीज के निर्देशक कौन हैं? आप हमें सबको जानकारी दें कि आपके विचार से इसके सीरीज के निर्देशक इन 4 ऑप्शन में कौन है? It's A. रोहित शेट्टी. लगता है भूमिका का पढ़ाई के साथ साथ फिल्मों में भी रुचि रखती है, इसीलिए इन 4 ऑप्शन में उसने सही ऑप्शन बताने का प्रयास किया है. देखते हैं उनका ऑप्शन कहाँ तक सही है. वो बोलती हैं कि पहला ऑप्शन, फर्स्ट जो विकल्प है रोहित शेट्टी, वही गोलमाल सीरीज के निर्देशक हैं. तो देखते हैं कि भूमिका ने कहाँ तक सही उत्तर दिया इस प्रश्न का. सो द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन इज यस, शी हैज गिवन द करेक्ट आंसर दिस टाइम. पहले प्रश्नों का गलत उत्तर देने के बाद अंततः वह सफल हुई और उन्होंने इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है. रोहित शेट्टी गोलमाल सीरीज के निर्देशक हैं. उन्होंने इस सीरीज की सभी फिल्में जो हैं डायरेक्ट की हैं. एंड भूमिका, अभी आपने अपना डांस का विषय एक रुचिकर विषय बताया और उसके साथ साथ आपकी लगता है इसमें भी दखल है. बहुत अच्छा, आपने इसके द्वारा 20 अंक अर्जित किए. अब बढ़ते हैं हम इस प्रश्नावली के अगले प्रश्न की ओर. और आपका नाउ इट इज द क्वेश्चन नंबर 8 दैट अपीयर्स ऑन योर स्क्रीन्स. And the question number 8 is, what is the full name of the former president, late Dr. APJ Abdul Kalam? I think the question is very easy to follow. What is the full name of the former president, late Dr. APJ Abdul Kalam? And the 4 options are A. Abul Parik Jainuddin Abdul Kalam, B. Abdul Pakir Zainuddin Abdul Kalam, C option is Abul Pakir Zakir Abdul Kalam, and D none of these.
These are the 4 options. So we move to the Hindi version of the question, and the question is पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? और इनके जो विकल्प हैं अ अबुल पकीर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम, ब अब्दुल पाकर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम, स अबुल पोकर जाकिर अब्दुल कलाम, और द इनमें से कोई नहीं। आपको छांटना है कि इनके नाम की फुल फॉर्म क्या है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, हमारी दूसरी प्रतिभागी रितु ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सर्वप्रथम बजर दबाया, और लगता है कि रितु को बहुत ज़्यादा पक्का विश्वास है अपने इस उत्तर देने पर। तो रितु, हम जानना चाहेंगे कि आपके विचार से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सर शायद ए अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम। आपने उत्तर भी बहुत ढंग से दिया, लेकिन शायद भी जोड़ दिया। तो क्यों शायद क्यों कहा आपने उत्तर देते समय? सर थोड़ा कंफ्यूज है। अच्छा, मतलब आपने पूर्ण विश्वास के साथ नहीं कहा, लेकिन लगता है कि आपने बहुत विश्वास के साथ कहा है। जिस तरह से आपने बजर दबाया उत्तर दिया, आपके प्रयास की सराहना करेंगे। देखते हैं कि आपने ये प्रयास कहाँ तक सही किया है और आपका उत्तर कहाँ तक सही है। सो वी मूव टू द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, शी इज वेरी राइट टू मेक द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। And the full form of this APJ Abdul Kalam is Abul Pakir Jainuddin Abdul Kalam. It is the correct name of our late president, और जिनको कहा जाता है कि अपने समय के, अपने युग के, पूरे विश्व के सबसे बड़े फिजिसिस्ट थे फिजिक्स में। और हमारा भारतवर्ष का जो आपका परमाणु परियोजना चली और जो परमाणु क्षेत्र में हम प्रवेश किए, ये इन्हीं की कृपा थी। एंड ही वॉज द हेड। जब सबसे पहले भारत ने पोखरण में अपना परमाणु विस्फोट किया था, ये उस टीम के लीडर थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ये उनका ही एक बार उस महान आत्मा को हम यहाँ से ताली के द्वारा उनका स्मरण करें। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द 8 questions, that is the first part of this questionnaire. So you people would be very much interested to know आपने क्या अंक पाए, क्या खोए, आपको जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होगी। तो इससे उसको बताने से पहले हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। कृपया आप कहने जाएं, उसके बाद मैं आपको आपके अंकों की तालिका आपके सामने रखूँगा। तो प्लीज़ यही वेट करिए, हम आते हैं बहुत जल्दी एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद। अभी तक आपके लिए लाया है हेल्थ केयर। ये कार्यक्रम आपको देगा आपकी हेल्थ से जुड़े सवाल और नामी ग्रामी डॉक्टर्स के जवाब। तो आइए उठाते हैं स्वास्थ्य लाभ और देखते हैं हेल्थ केयर। ब्रेक के बाद एक बार पुनः सभी प्रतिभागियों का इस अभी तक चैनल के मंच पर पुनः अभिवादन, पुनः स्वागत। प्रश्नावली के 8 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास के बाद कुछ प्रतिभागी अंक पाने में सफल हुए, कुछ ने सही उत्तर दिए लेकिन गलत उत्तर देने के कारण वह अंक खो बैठे, और कुछ ने अभी उसमें अंक पाने की श्रेणी में प्रयास ही नहीं किया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इन 8 प्रश्नों के उत्तर देने के पश्चात आप सभी प्रतिभागियों ने इस अंक तालिका में क्या पाया, क्या खोया, जिसमें केवल प्रतिभागी नंबर 2 रितु फ्रॉम चांदपुर और प्रतिभागी नंबर 3 वाजिया फ्रॉम अफजलगढ़, इन दोनों प्रतिभागियों ने 20-20 अंक अर्जित किए। इनका तालियों से स्वागत। शेष 4 प्रतिभागी, जिनमें से रवि जैसे प्रतिभागी ने सही उत्तर देकर अंक अर्जित किए लेकिन गलत उत्तर देकर अंक खोए, तो ये चारों प्रतिभागी अभी अंक पाने में सफल नहीं हुए। सभी का जो अंक तालिका है अभी 0 है, लेकिन अभी क्योंकि
7 प्रश्नों का उत्तर बाकी है। सभी बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लें, और क्योंकि एक सही उत्तर आपको 20 अंक अर्जित करने में सहायक बनेगा, तो आप 2 प्रश्नों के भी अगर सही उत्तर दे देते हैं तो आप अंक तालिका में बहुत तेजी से आगे छलांग लगा देंगे। सो वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। माय डियर कंटेस्टेंट, वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। सो प्लीज बी अलर्ट एंड जस्ट गो थ्रू द सेम प्रोसेस। उसी प्रक्रिया के आधार पर अपना प्रयास करते जाएं। निर्देश के बाद बजर दबाएं और 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन छांट कर बताएं। सो नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। बी अलर्ट एंड लुक एट योर मॉनिटर स्क्रीन्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट द गलिवर्स ट्रेवल्स, a famous book? You have to tell the writer, and the 4 options are A. Charles Dickens, B. W. Chaucer, C. Jonathan Swift, and D. T. S. Eliot. You have to tell the writer of the famous book Gulliver's Travels. The Hindi version is Gulliver's Travels किसने लिखी है। ये प्रसिद्ध पुस्तक है और आपको इनके लेखक का नाम बताना है। लेखक के 4 ऑप्शन हैं, A. चार्ल्स डिकेंस, बा विलियम चौसर, सा जोनाथन स्विफ्ट और द T.S. एलियट। इन 4 में से आपको सही उत्तर छांट का बताना है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, वंस अगेन इट इज मिस्टर रवि, द कंटेस्टेंट नंबर 1, हु हैज पुट द बजर जस्ट टू टेल हिज आंसर। उन्होंने बजर दबाया और ये सोचकर कि वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हम सबके सामने रखेंगे। सो मिस्टर रवि, आप बताएं कि इन 4 ऑप्शन में आपके विचार से कौन सा सही ऑप्शन है इसके राइटर का। सर इट्स सी, जोनाथन स्विफ्ट। रवि बोलते हैं कि गुलिवर्स ट्रेवल्स के जो लेखक हैं वह सर जोनाथन स्विफ्ट हैं। सो देखते हैं कि जोनाथन स्विफ्ट उनके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है या नहीं। सो वी मूव टू द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यस, ही हैज मेड वेरी करेक्ट आंसर and Jonathan Swift is the writer of this famous book Gulliver's Travels। बताने का प्रयास करें कि आप क्या इस राइटर के बारे में, बुक के बारे में कुछ जानते हैं क्या? Yes sir, I have read this book. And the writer? Yes, he is the writer of this book. I have read him just only this book of his. Yes. Jonathan Swift is a very much renowned critic and he has written a number of novels and this गुलिवर्स ट्रेवल्स, शायद आप बच्चों ने छोटे क्लास में इसका एक छोटा सा पहले पार्ट से, इट हैज गॉट 4 पार्ट्स, इसके 4 पार्ट हैं इस नॉवल के। गुलिवर लिलीपुट, गुलिवर इन ब्रॉबडिनैक, गुलिवर इन लापुता एंड हुनीहम्स, इसके 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है गुलिवर लिलीपुट। आपने पढ़ा होगा कि गुलिवर छोटे बौनों के 6 इंच वाले बौनों के देश में पहुंच जाता है। Yes sir. बहुत इंटरेस्टिंग, शायद 6th, 7th, 8th में है और ये महान लेखक हुआ है, एक आलोचक लेखक और पैटर्न द बुक्स, इस तरह की इसकी बहुत नामी बुक्स हैं। अच्छा लगा कि आपने ये पढ़ा। ये यूनिवर्सिटी क्लासेस में, डिग्री क्लासेस में ये बुक्स चलती हैं और बहुत बढ़िया बुक है अपने आप में। मैं चाहूँगा कि आप सब लोगों को जब कभी समय मिले आप उसको रवि की तरह से ज़रूर पढ़ें। सो रवि, बाय मेकिंग द करेक्ट आंसर यू हैव गेन्ड 20 पॉइंट्स। सो आई होप दैट इन फ्यूचर ऑल्सो विल गो मूविंग इन द टर्म ऑफ दिस पॉइंट्स the numbers by making the correct answer to the questions। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। Yes, after getting the correct answer of question number 9 from Mr. Ravi, so now we move to the question number 10। So please alert now, it is the question number 10 on your monitors। Question number 10 is, who invented radio? You have to tell the name of the person who invented radio and 4 options are A. Marconi, B. Aristotle, C. Galileo Galilei and D. Archimedes। These are the 4 options: Marconi, Aristotle, Galileo and Archimedes। So the Hindi version of this question is, रेडियो का आविष्कार किसने किया? वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपने खूब पढ़े होंगे आविष्कार। और 4 ऑप्शन है, A. Marconi, B. Aristotle, सा गैलीलियो गैलीली और चौथा ऑप्शन है आर्किमिडीज। ये चारों बड़े प्रसिद्ध नाम हैं। आपको बताना है कि इसमें किस नाम ने रेडियो का आविष्कार किया और आपका समय शुरू होता है अब। यस, इट इज द पार्टिसिपेंट नंबर 2
Miss Ritu, सर ए मार्कोनी. according to Ritu, the correct option of this question is A, Marconi. She says, yes, it was Marconi who invented radio. अब देखते हैं कि उनकी ये ज्ञान कहाँ तक उनको अंक दिलाने में सफल होता है, और उनका ऑप्शन है ए, मार्कनी. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, शी इज वेरी राइट टू से मार्कनी इन्वेंटेड रेडियो. और बाय मेकिंग द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शी हैज गेन्ड 20 पॉइंट्स. रेडियो आज भी बहुत प्रचलित है ग्रामीण समाज में, और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे पिताजी दादाजी, वे लोग रेडियो को बहुत पसंद करते हैं. इट इज़ पोर्टेबल, जहाँ भी चाय उठा के ले जाइए. और उनका विशेष रुचि होती है इसमें गांव की किसान भाइयों का कार्यक्रम सुनने का, और विशेषकर न्यूज़ सुनने का. ये आज भी चार्म है. रेडियो उनके लिए बहुत एक अपने आप में प्रभावशाली एक माध्यम है देश विदेश को जानने का. सो थैंक यू द कंटेस्टेंट, यू मेड द करेक्ट आंसर. एंड सो ये कैसे जाना आपने मार्कनी? आप 4 और 3 नाम भी बहुत प्रसिद्ध नाम थे, और आर्किमिडीज भी अपने क्षेत्र में बड़ा नामी नाम है. सर मेरी छोटी बहन आरती ने बताया था मुझे. अच्छा, बहुत बढ़िया. ज्ञान तो हम कहीं से भी अर्जित कर सकते हैं, और ये अब हमारा प्रयास है कि हम उस ज्ञान को अपने दिमाग में, अपने उसमें बुद्धि में कैसे उसको संभाल कर रखें. देखिए, आपकी छोटी बहन ने आपकी सहायता की और आपको 20 अंक अर्जित करने में आज आपकी मदद की. अपनी बहन को एक बार जरूर धन्यवाद बोलिएगा घर जाकर. सो इट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज देयर ऑन योर मॉनिटर स्क्रीन. प्लीज कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड द क्वेश्चन अपीयर्स देयर, which is the largest part of human brain. Very simple question, very good question. Which is the largest part of human brain? And the options are A, cerebral, B, frontal, C, lobes, and D, cerebrum. These are the 4 options: cerebral, frontal, lobes and cerebrum. So अब इसका क्वेश्चन का हिंदी वर्जन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? आपको बताना है कि मानव मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, और इसके 4 विकल्प हैं: A, cerebral, B, ललाट, C, lobes और D, cerebrum. 4 ऑप्शन हैं, और आपका समय शुरू होता है अब. पुनः ये मिस्टर रवि हैं, हमारे प्रतिभागी नंबर 1, जिन्होंने तेजी से बजर दबाया इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि वो जानते हैं कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है. तो रवि, आप हम सबको बताएं कि आपके अनुसार इन 4 विकल्प में कौन सा विकल्प सही है. Sir, it's D, cerebrum. रवि बोलते हैं कि इन 4 विकल्पों में जो चौथा विकल्प है सेरेब्रम, सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन. उनको लगता है कि मानव शरीर की संरचना के बारे में काफ़ी अच्छा ज्ञान है, इसीलिए उन्होंने बहुत तेज़ी से इस प्रश्न का बड़े विश्वास के साथ उत्तर दिया है. देखते हैं रवि कि आपका ये प्रयास कहाँ तक आपको अंक दिलाने में सफल होता है. सो वी मूव टू द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, एंड द करेक्ट आंसर इज डी. यस, बाय मेकिंग द करेक्ट आंसर रवि हैज़ गेन 20 पॉइंट्स. सो फॉर एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि तेज़ी से आगे बढ़ें और अच्छे से अच्छे अंक पाएँ. रवि ने इसी प्रयास में अपने आप को लगाया, आगे बढ़े, और 2 सही उत्तर प्रश्नों का उत्तर देकर वो अंक तालिका में आगे बढ़ते जा रहे हैं. यहाँ पर भी उन्होंने 20 अंक अर्जित किए. रवि, आपको एक बार फिर बधाई. ह्यूमन जो आपने मस्तिष्क के बारे में बताया, कैसे आप जान पाए कि दिस डी ऑप्शन इज द वेरी करेक्ट आंसर ऑफ दिस question? Sir, I have read it. There are 3 parts in the brain: cerebrum, cerebellum, and medulla oblongata. Yes. So it's the largest one is cerebrum. So what is the role of medulla oblongata? Sir, that much I don't remember, but I know that this is the longest, largest. रवि ने बिल्कुल सही उत्तर दिया. इसी प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और सभी लोग ध्यान से अपने स्क्रीन पर इस प्रश्न को पढ़े हैं. और अगला प्रश्न, नाउ इट इज क्वेश्चन 12 दैट इज ऑन योर स्क्रीन. विद हुज हेल्प ऑक्सीजन इज कैरीड बाय ब्लड? द क्वेश्चन इज विद हुज हेल्प ऑक्सीजन इज कैरीड बाय ब्लड. वेरी गुड क्वेश्चन, एंड रादर आई थिंक इट्स एन ऑल्सो एन इजी क्वेश्चन. सो द ऑप्शंस आर A,
RBC रेड ब्लड सेल्स, B प्लाज्मा, C hemoglobin and D white blood cells WBC. These are the 4 options. इसका हिंदी रूपांतर है किसकी सहायता से ऑक्सीजन को रक्त द्वारा ले जाया जाता है। आपको ध्यान देना है कि किसकी सहायता से ऑक्सीजन को रक्त द्वारा शरीर में ले जाया जाता है। और आपके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अ लाल रक्त कोशिकाएं, ब प्लाज्मा, स हीमोग्लोबिन, ड श्वेत रक्त कोशिकाएं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको अलर्ट रहना है अपने बजर को दबाते समय। जैसे ही मैं आपको यहाँ से निर्देश दूंगा, बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इट इज वंस अगेन पार्टिसिपेंट नंबर 1 मिस्टर रवि, ही हैज वंस अगेन पुट द बजर। और क्योंकि जैसा अभी उन्होंने बताया इससे पहले उत्तर में, उनको मानव शरीर के बारे में एक अच्छी खासी जानकारी है, तो इसीलिए उन्होंने बजर दबाने में इतनी फुर्ती और इतनी तेज़ी दिखाई। उनको विश्वास है कि वो सही उत्तर दे पाएंगे। सो मिस्टर रवि, आई जस्ट आस्क यू विच अकॉर्डिंग टू द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, कि किसकी सहायता से ऑक्सीजन को रक्त द्वारा ले जाया जाता है। ए लाल रक्त कोशिकाएं, बी प्लाज्मा, सी हीमोग्लोबिन और डी श्वेत रक्त कोशिकाएं। Sir, it's C, hemoglobin. Ravi says that yes, it is hemoglobin. C, that is the correct answer, correct option of this question. देखते हैं कि इस बार भी रवि का प्रयास सफल होता है या नहीं। इस प्रश्न के सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं। Yes, he has made a very correct answer. It is C, hemoglobin. इसके द्वारा ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैलाया जाता है और रवि ने सही उत्तर दिया। रवि, इस विषय में बताएं कि आपको ये क्यों लगा कि हीमोग्लोबिन ही वो चीज़ है जो उसको ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर में फैलाती है। Sir, as you said earlier, it's a very easy question. It was damn easy. So hemoglobin, it is a red pigment which carries oxygen through our veins, through our arteries. राइट, ये हमारे शरीर का एक बहुत ही आवश्यक अंग है। आवश्यक तो सभी हैं, लेकिन कुछ अंग परमावश्यक हैं जिनके बिना शरीर जीवित नहीं रह सकता, चल नहीं सकता। और उसमें एक चीज़ है, एक एलिमेंट है, दैट इज हीमोग्लोबिन। जैसा उन्होंने बताया कि इट इज़ द थिंग दैट कैरीज द ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। और उनका ये प्रयास उनको 20 अंग दिलाने में सफल हुआ। तो रवि के लिए एक बार फिर तालियां। सो आफ्टर मेकिंग और फाइंडिंग द करेक्ट आंसर ऑफ दिस, हमारे बीच में जो कंटेस्टेंट बैठे हैं, सो मैं चाहूँगा कि हमारे प्रतिभागी नंबर 2 जो हमारे बीच में यहाँ पर विद्यमान हैं, रितु, आप बताएं कि आपकी ज्ञान के साथ साथ किस क्षेत्र में विशेष रुचि है जिसमें आप जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं। सिंगिंग। यस, ये हमारे भारतीय समाज का एक बहुत प्राचीन अंग है, गायन और वादन। अनेकों महापुरुष इस क्षेत्र में हुए हैं। किस तरह के गीत या गाने में आपकी रुचि है, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, कोई विशेष इसमें कोई स्ट्रीम हो उसके बारे में बताएं। सर, मुझे तो सभी अच्छे लगते हैं। जैसे गाना एक तो आजकल युवाओं के बीच में शौक है फिल्मी गाने गाने का, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से गीत हैं जो लोकगीत हैं। ऐसा कौन सा विशेष आपका रुचि का भाग है? नहीं सर, अभी ऐसा कोई नहीं है। अभी तो मैं 12th में हूँ, तो उस पर ही कॉन्सेंट्रेट है। ठीक, तो अच्छा है। चलिए, आपने एक शिक्षा के साथ साथ एक नए विधा को भी आपने अपनाया है, वो है आपके गायन की विधा। आप भविष्य में इसमें भी आगे बढ़ें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। तो बढ़ते हैं फिर इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है आपके मॉनिटर स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड to become the president of India? Go through the question again. What is the minimum age prescribed to become the president of India? And the 4 options are: A 25 years, B 32 years, C 35 years, and D 36 years. These are the 4 ages, and you have to tell which is the minimum to become the president of India. और इसका प्रश्न का हिंदी रूपांतर आपके स्क्रीन पर है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु आपको बताना है। और 4 ऑप्शन हैं: A 25 वर्ष,
बा 32 वर्ष, सा 35 वर्ष और दा 36 वर्ष। इन 4 आयु में आपको बताना है कि राष्ट्रपति बनने के लिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है। और आपका समय शुरू होता है अब। यस, अगेन I also request all the other contestants to be alert and just to put your buzzer. Again, it is contestant number 1, Mr. Ravi, who has come forward to put the buzzer and make the answer to this question. रवि के अनुसार जानना चाहेंगे कि उनके विचार से भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है और इन 4 ऑप्शन में उनके विचार से कौन सा ऑप्शन सही है। Sir, it's C, 35 years. रवि कहते हैं कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो सबसे कम आयु है, निर्धारित न्यूनतम आयु, वह है 35 वर्ष। उनके अनुसार ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज 35 years टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखेंगे, जानेंगे कि रवि का इस राजनीति के क्षेत्र में और राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में ज्ञान कहाँ तक उनका उत्तम है। तो बढ़ते हैं इस प्रश्न के उत्तर की ओर, और इस प्रश्न का सही उत्तर है यस, ऑप्शन सी। once again Ravi has put the buzzer, he has come first forward to make the buzzer, and regarding the answer he is also once again correct by making the correct option, that's C, 35 years. Yes, after going through the correct answer of this question made by Mr. Ravi, so now come to contestant number 4, that is Pallavi. So Pallavi, I want to ask regarding your स्पेशल ब्रांच, स्पेशल स्ट्रीम, जिसमें आपकी अपने आप में विशेष रुचि हो, जो आपका पसंदीदा क्षेत्र हो, वो चाहे शिक्षा का हो, शिक्षा से लगा हुआ हो, इस विषय में आप कुछ हमें बताना चाहेंगी? Yes, I love to dance and I'm very interested in this field. बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नृत्य, और जैसे मैंने कहा कि गायन और नृत्य हमारे समाज की बहुत प्राचीन विधाएं हैं, और डांस अपने आप में एक शारीरिक व्यायाम भी पूरी तरह से होता है। एक ही डांस में आदमी को पूरी तरह से पसीना आ जाता है। आप बताना चाहेंगे कि किस प्रकार का विशेष नृत्य आप को पसंद है? अभी तो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करती हूँ, स्कूल में जिस तरह से सिखाया जाता है, बट आई एम इन 10th क्लास नाउ, सो आई एम फुली कंसंट्रेट ऑन माय स्टडी। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि क्या आपके स्कूल में डांस के लिए कोई अलग से कोई टीचर रखे हुए हैं जो आपको डांस सिखाते हों? नो, नॉट अ स्पेशल टीचर, बट वन टीचर इज रूही मैम, सो वो सिखाती है। बहुत अच्छा कि कोई टीचर आपको मार्गदर्शन करते हैं और आपकी रुचि में आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, तो बहुत अच्छा है, और ईश्वर आपको इस क्षेत्र में और आगे बढ़ाए। और इस विषय में आपको जो भारत में विभिन्न राज्यों में जो प्रचलित नृत्य हैं उसके विषय में भी आप जानकारी रखें। बहुत नृत्य हैं आपके, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, एक से एक उत्तम श्रेणी के नाटक हैं, वो नृत्य हैं, तो कृपया उस विषय में जानकारी रखें। तो इनके प्रोत्साहन के लिए कि भविष्य में ये नृत्य के क्षेत्र में आगे बढ़ें, एक बार सभी लोग इनको प्रोत्साहित करें कार्यों के द्वारा। इन द सेम प्रोसेस नाउ कम टू contestant number 5, मिस्टर मोहक मित्तल। मोहक, हम सभी ये जानना चाहेंगे कि आप ज्ञान के क्षेत्र में तो आगे हैं, जो इसी बात का आपका प्रमाण है कि आप इतने 1000 बच्चों में से क्वालिफाई करते हुए इस क्वार्टर फाइनल राउंड में आए हैं, तो किस विषय में आप एक पारंगत हैं या किस विषय में आपकी एक अपने आप में विशेष रुचि है, हम आपसे इस विषय में जानना चाहेंगे। Sir, I like playing games, especially in cricket. I also like running. Yes, very nice. गेम्स, जैसे कहा जाता है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि हेल्दी बॉडी बियर्स अ हेल्दी माइंड, ऐसा बोला जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। और जैसे आपने कहा दौड़ना, रेस, हमारे यहाँ तो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध धावक हुए हैं। किसी एक महिला या पुरुष धावक के विषय में आप बोल सकते हैं जिसने विश्व में दौड़ने के क्षेत्र में अपना डंका बजाया हो? सर, रेसिंग के बारे में सर इतना नहीं पता है। कोई बात नहीं, अभी आप जैसे जैसे क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, आपने सभी ने मिल्खा सिंह का नाम सुना होगा। उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि दी गई थी,
और एक पीटी उषा, ये सभी बड़ा प्रसिद्ध नाम है। उसको विश्व स्तर पर उसने उड़न परी का खिताब उसको मिला था, उड़न परी उसको बोलते थे, और मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि से नवाजा गया था। उनके दौड़ने के कारण वो विश्व में अपना कीर्तिमान बनाया था इस दौड़ के क्षेत्र में। बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी रुचि के बारे में बताया कि आपको खेलों में विशेष रुचि है, और क्रिकेट भी, क्योंकि आजकल बड़ा पॉपुलर गेम हो रहा है क्रिकेट, क्योंकि टीवी स्क्रीन को कब्जाए हुए है और हर समय पूरे वर्ष भर क्रिकेट के मैचेस चलते रहते हैं। लेकिन आपकी ज्ञानवर्धन के लिए मैं आपको बताऊं कि विश्व में जो सबसे अधिक लोकप्रिय खेल है वह है फुटबॉल, और उसमें सबसे अधिक पैसा भी, अगर आप पढ़ें आजकल मैसी बहुत पॉपुलर खिलाड़ी है, 2 अरब रुपए में उसको एक क्लब ने उसको अपने यहाँ अनुबंधित किया है, और ये विश्व का सबसे अधिक लोकप्रिय खेल है और उसमें सबसे अधिक पैसा है, दैट इज़ फुटबॉल। It's so nice to hear from these different contestants regarding their special choice, regarding their special interest they have developed in different kind of fields, sometimes in academics and sometimes games, dance, music. So it is called all-round development. इसे कहते हैं सर्वांगीण विकास। हमें दिमाग के साथ साथ शरीर का विकास भी करना है और भिन्न क्षेत्रों में भी अपनी रुचि रखनी है। इसी क्रम में मैं अपने प्रतिभागी नंबर 3 मिस वाजिया के पास आता हूँ। आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस क्षेत्र में आपको लगता है कि मैं इसमें विशेष रूप से आगे बढ़ सकती हूँ, या मैं इसमें कोई जीवन में अपना एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकती हूँ, हमें अपने इस विषय में बताएं। एक्चुअली सर मेरा फ्यूचर प्लान डॉक्टर है, और मैं इंटरेस्टेड रखती हूँ बायो में, एंड मुझे गेम में भी इंटरेस्ट है, लाइक बैडमिंटन। That's so nice. You know, because in the very early stage, that is our high school stage, 9th and 10th standard, we have to select the aim of our life. इसी स्थिति में आपको ये चुनना पड़ता है, आपके गार्जियंस आपको सलाह देते हैं और उनकी सलाह से आप अपना जीवन का एक उद्देश्य चुनते हैं कि हमें भविष्य में यह बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रीम्स आर देयर। अब तो सैकड़ों क्षेत्र हैं जिसमें आप भविष्य अपना बना सकते हैं। तो ये आपने बहुत एक अच्छा आपका प्रयास है, सराहनीय प्रयास है कि आपने भविष्य में क्या बनना है उसके लिए अभी से आप शुरुआत कर चुकी हैं, और फॉर दैट सेक यू हैव ऑप्टेड बायो एज ए सब्जेक्ट अमंग ऑल द अदर सब्जेक्ट्स। हमारे इस प्रतिभागी नंबर 3 ने अपनी रुचि दिखाई और बिल्कुल ठीक कि बायो इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट टू कम टू दिस फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। तो भविष्य में क्योंकि वो डॉक्टर बनने का सपना देख रही हैं और उन्होंने उसी के लिए अभी इनिशियल स्टेज में सही विषय चुने हैं, वह निश्चित रूप से अपने उद्देश्य में सफल होंगी। तो इसी कामना के साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि नाउ वी आर मूविंग द फैग एंड ऑफ दिस क्वेश्चनायर। अंतिम प्रश्नों के उत्तर बढ़ रहे हैं। कृपया सभी ध्यानपूर्वक देखें और तुरंत उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें ताकि उनको भी अधिक अंक अर्जित करने में सफलता मिले। सो वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज बी अलर्ट नाउ। यस, इट इज क्वेश्चन नंबर 14. So look at your screens. And the question is, who is the founder of Facebook? Again, a very charming question on your screen. Who is the founder of Facebook? And the options are A. Mark Zuckerberg, B. James Cohn, C. Bill Gates, and D. Steve Chen. These are the 4 options. And I come into the Hindi version of this question. And the question is, Facebook के संस्थापक कौन हैं? आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में, और आपके ऑप्शंस हैं A. मार्क जुकरबर्ग, B. जाम कॉन, C. बिल गेट्स और D. स्टीव चेन। ये 4 ऑप्शंस हैं। अपनी बुद्धि का अच्छा इस्तेमाल करते हुए आपको शीघ्र अपना बटन दबाकर, बजर दबाकर ये बताना है कि इन 4 में से आपके अनुसार कौन सा सही व्यक्ति फेसबुक का संस्थापक है। और आपका समय शुरू होता है अब। यस, नाउ दिस टाइम इट इज़ कंटेस्टेंट नंबर 5। ये हमारे प्रतिभागी नंबर 5 हैं, मिस्टर मोहक। उन्होंने बजर दबाने में अपना तेज़ी दिखाई और लगता है कि उनको, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अपने आप में एक बड़ा प्रचलित
एक ऐप है फेसबुक, और अधिकांश लोग इसका प्रयोग करते हैं। मैं जानना चाहूँगा मैं कि आपने कौन सा ऑप्शन इसमें से सही छांटा जो आपके अनुसार फेसबुक के संस्थापक का नाम है। Sir, I think it's A. Mark Zuckerberg. Yes, Max says that yes, according to him, Mark Zuckerberg is the correct option and he is the founder of Facebook. देखते हैं कि उनका ये प्रयास उनको कहाँ तक अंक अर्जित करने में सहायता करता है। So we move to the answer this very question and the correct answer is yes. By making the correct answer, he has earned 20 points. मार्क जुकरबर्ग फेसबुक, मैं समझता हूँ कि जो इसका सेल फोन का प्रयोग करते हैं उनमें से 60-70% लोग ज़रूर फेसबुक को भी ऑपरेट करते हैं। ये अपने आप में बहुत ही प्रचलित एक माध्यम है। फेसबुक एक पार्ट है हमारे सेल फोन का, और मार्क जुकरबर्ग एक बड़ा विश्व प्रसिद्ध नाम है जो इस के फेसबुक के संस्थापक हैं। मोहक, आप बताना चाहेंगे, आपको किसी जानकारी भी कि मार्क जुकरबर्ग ही इस फेसबुक के संस्थापक हैं? Sir, I read this before in the class. Yes, because whenever we pass through something very interesting, जब कोई रुचिकर चीज़ हमारे सामने आती है और हमारी रुचि की होती है तो हम उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। यही मोहक ने किया और इस जानकारी ने उनको 20 अंक अर्जित करने में सफलता दिलाई। सो महक के लिए एक बार फिर तारीफ। नाउ द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन, अब हम बिल्कुल अंतिम कड़ी की ओर बढ़ रहे हैं और इस प्रश्नावली का ये 15वां प्रश्न है। मैं चाहूँगा कि सभी प्रतिभागी अपना पूरा दमखम इस प्रश्न के उत्तर देने में और बजर दबाने में लगाएं ताकि वो सही उत्तर देकर इस अंतिम प्रश्न में 20 अंक अर्जित करने में सफलता पा सकें। सो नाउ अब आपका ध्यान आपके स्क्रीन पर होना चाहिए ताकि आप सही क्वेश्चन पढ़कर सही आंसर दें। सो इट इज़ द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन एंड द क्वेश्चन इज हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियाज आर्म्ड फोर्सेज। आई रिपीट द क्वेश्चन, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियाज आर्म्ड फोर्सेज एंड द 4 ऑप्शंस आर ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी गवर्नर and D Chief Minister. These are the 4 options. So you have to tell who is the Supreme Commander of India's Armed Forces. और इसका प्रश्न का हिंदी रूपांतर है, भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन हैं? भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन हैं? और 4 विकल्प हैं, आ राष्ट्रपति, बा प्रधानमंत्री, सा राज्यपाल, अथा मुख्यमंत्री। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और अपने ज्ञान का पूरा प्रयोग करते हुए आप बताएंगे इसके सही ऑप्शन के बारे में और आपका समय शुरू होता है अब। अगेन इट इज़ कंटेस्ट नंबर 1 हु हैज़ पुट द बजर फर्स्ट एंड ट्राइड टू मेक हिज आंसर। जिन्होंने मिस्टर रवि ने बजर दबाया अपने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, और क्योंकि वो इस प्रक्रिया में सबसे आगे रहे बजर दबाने की, शेष प्रतिभागी ऐसा नहीं कि उनको इसका उत्तर ना मालूम हो, क्योंकि अपने आप में बहुत सरल और जान पहचान का क्वेश्चन है। सो मिस्टर रवि, ऑल ऑफ अस विल विश टू नो दैट व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज अमंग दीज 4? Sir, our president is the supreme commander of armed forces. A, option A. How did you come to know that? Sir, it's just reading. I read it. Because it is a part of either constitution or the part of political science. The constitution comes in political science, no? हाँ, या of course. रवि कहते हैं कि राष्ट्रपति भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं। देखिए, इन्होंने प्रयास किया है सही उत्तर देने का अपनी बुद्धिमत्ता से। अब हमें जानना है कि इनका ये उत्तर निश्चित रूप से इनको 20 अंक दिलाएगा या नहीं। इसके लिए हमें इस प्रश्न के सही उत्तर की ओर बढ़ना पड़ेगा और इस प्रश्न का सही उत्तर है यस। अगेन ही हैज गेन्ड 20 पॉइंट्स बाय मेकिंग द करेक्ट आंसर। भारत के जो हमारे सशस्त्र बलों के 3 विंग हैं, आर्म फोर्सेज, नेवल फोर्सेज एंड एयर फोर्सेज, इन तीनों का जो सुप्रीम कमांडर है वो संविधान के अनुसार हमारे देश के राष्ट्रपति
ये तीनों फोर्स के आर्म फोर्सेस के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। तो एक बार फिर रवि ने दोनों तरह से अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करने का प्रयास किया, बजर दबाने की स्थिति में भी और प्रश्न का सही उत्तर देने की स्थिति में भी। पहले भाग में वो ज़रूर पिछड़ गए थे, उनको 0 अंक प्राप्त हुए थे क्योंकि उन्होंने सही उत्तर दिया फिर गलत उत्तर दिया, तो ही हैज़ गेन्ड नो पॉइंट देयर। लेकिन दूसरे भाग में आकर उन्होंने कई प्रश्नों के सही उत्तर दिए और वो अंत में जानेंगे कि उन्होंने अपने इन प्रयासों से कितने अंक पाने में सफलता पाई। सो इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चनर। आपने अंतिम प्रश्न का सामना किया, 15वां प्रश्न, और इस प्रश्न का सही उत्तर भी हमको मिला। तो जैसे मैंने आपसे बोला था शुरू में, वेल बिगिन इज़ हाफ डन। तो क्योंकि शुरुआत सही आंसर से हुई थी तो उसका अंत भी क्वेश्चनर का सही आंसर से हुआ। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं, एक बार ताली। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 15 क्वेश्चंस क्वेश्चनर, now we have come to the very end of this round of quarter final Genius Con season 3. So everybody would be very much anxious and eager to know how much he gained and what he lost. So in this इस अंक तालिका में मैं सभी 6 प्रतिभागियों को बताना चाहूँगा कि उन्होंने अपने प्रयासों के द्वारा कितने अंक अर्जित किए। इन अंकों की श्रेणी में कंटेस्ट नंबर 1 मिस्टर रवि is the highest by securing 100 marks out of that. So we should clap it. The second contestant, Miss Ritu, she has gained 40 points, and Wazia, the third participant, she has scored 20 marks. Then it is fourth one, Pallavi, she has secured 0 marks. Bhumika has also secured 0 marks, but the contestant number 5, Mohak, he has secured 20 marks. So now these 2 contestants, first and second, Ravi and Ritu, they have secured 140 marks. So now the tie comes between the 2. It is Wazia, contestant number 3, and contestant number 5, Mohak Mittal. इन्होंने 20 अंक अर्जित किए हैं। तो इनके बीच में क्योंकि हमें एक प्रतिभागी को चुनना है जो इन 2 अलग प्रतिभागियों के साथ में सेमीफाइनल राउंड में पहुंचे, तो इसके लिए इन दोनों के बीच में टाई को तय करने के लिए केवल इन 2 प्रतिभागियों के समक्ष एक नया प्रश्न रखा जाएगा और उस प्रश्न के उत्तर में जो भी प्रतिभागी इन दोनों में से, शेष 4 प्रतिभागी इसमें भाग नहीं लेंगे। प्रतिभागी नंबर 3 वाजिया और प्रतिभागी नंबर 5 मोहक ही इस प्रश्नोत्तरी में भाग लेंगे। जो प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा, आप दोनों में से जो भी बजर पहले दबाएगा वह उस प्रश्न का उत्तर देगा। सही उत्तर देने पर मिलेंगे 20 अंक और गलत उत्तर, जैसा कि आप अब तक जान रहे हैं, गलत उत्तर देने पर कट जाएंगे 10 अंक। तो ये आपका प्रश्न तय करेगा कि आप दोनों में से कौन सेमीफाइनल राउंड में जाने का प्रतिभागी घोषित होगा। तो अपने मॉनिटर स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, प्रतिभागी नंबर 3 और प्रतिभागी नंबर 5, एंड द क्वेश्चन कम्स ऑन योर स्क्रीन, so be attentive now. And the question is, which company's product line includes Maggi, Kit Kat and Nescafe? And the options are A. Cadbury, B. Hull, C. Nestle and D. Hindustan Unilever Limited. Which company's product line includes Maggi, Kit Kat and Nescafe? इसका हिंदी रूपांतर इस प्रश्न का, मैगी, किटकैट, नेस्कैफे नामक प्रोडक्ट्स किस कंपनी से संबंधित हैं। आपको बताना है कि ये प्रोडक्ट किस कंपनी से संबंधित है। उसके ऑप्शंस हैं कैडबरी, बी हल, सी नेस्ले एंड डी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। सो यू हैव टू मेक द करेक्ट आंसर ऑफ दैट। यस, आपका समय शुरू होता है अब। यस, एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज कंटेस्टेंट नंबर 3 जिसने आगे बढ़ने का साहस किया, रिस्क लेने का प्रयास किया और उसने बजर दबाया इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि मैगी, किटकैट और नेस्कैफे ये किस कंपनी का उत्पादन है। सो वजिया, अब आप हम सबको बताएं कि आपके विचार से कैडबरी, हुल, नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन 4 विकल्पों में से आपके अनुसार कौन सा विकल्प सही है। ए, कैडबरी।
वजह कहती हैं कि उनके विचार से ये मैगी, किटकैट और नेस्कैफे ये कैडबरी नाम की कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। देखते हैं कि उसका ये प्रयास कहाँ तक सफल होता है और उसको आगे दूसरे राउंड दैट इज सेमीफाइनल राउंड में ले जाने में सफल होता है या नहीं। सो नाउ वी मूव टू द आंसर दिस वेरी क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज वजिया। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज नेस्ले। नेस्ले कंपनी इस किटकैट का, मैगी का और जो आपकी कॉफ़ी है नेस्कैफे उसका उत्पादन करती है। सो नेस्ले इज़ द करेक्ट आंसर। सो आई एम रियली सॉरी टू से, हालांकि आपने बहुत प्रयास किया और दो के बीच में आप ही ने ये साहस दिखाया इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से ये प्रश्न का उत्तर आप सही नहीं दे पाई, इसलिए आपने 10 अंक खो दिए। और इस प्रकार से इन प्रतिभागियों की श्रेणी में प्रतिभागी नंबर 5, नाउ इट इज द कंटेस्टेंट नंबर 5 who have gained already 20 marks, and with the virtue of those marks he has come to the next round of semi-final. So just a clap for him and Wazia also, because she made the attempt to answer this very question. So that was a chain of 15 questions, and in the last it was the question number 16 that was brought between the two contestants number 3 and 5. Just to confirm who would be the third participant who would go along with the two others 140 marks contestant to enter the semi-final. So it is contestant number 5, that is Mohak Mittal, who has succeeded to secure 20 marks, and he is the third participant who have succeeded to reach the second round, that is the semi-final round. So thank you so much, and we will just go for a small break. छोटे से ब्रेक ले जाते हैं, उसके बाद फिर वापस लौटेंगे। आप कहीं न जाएं। धन्यवाद। अभी तक आपके लिए लाया है हेल्थ केयर। ये कार्यक्रम आपको देगा आपकी हेल्थ से जुड़े सवाल और नामी ग्रामी डॉक्टर्स के जवाब। तो आइए उठाते हैं स्वास्थ्य लाभ और देखते हैं हेल्थ केयर। So after the break, once again we all are here, and after knowing your marks, after knowing whatever you earned and whatever you lost, उन अंकों की श्रेणी के आधार पर हमारे 3 प्रतिभागी मिस्टर रवि, मिस्टर मोहक एंड रितु, these 3 participants they have come to the second round of semi-final. लेकिन जो हमारे 3 प्रतिभागी इस दौड़ में सफल नहीं हो पाए, पीछे रह गए, उनका भी प्रयास इस मंच की ओर से बहुत सराहनीय रहा और उन लोगों ने बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिता में भाग लिया। और मैं इसी कामना के साथ कि भविष्य में वो जीनियस कॉन के सीज़न नंबर 4 में और तैयारी के साथ में प्रतिभाग लेंगे और इसी क्रम में क्वार्टर फाइनल, देन सेमीफाइनल, देन प्री फाइनल एंड द लास्ट फाइनल में अपनी विद्वता का परिचय देते हुए आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से पुरस्कार जीतने में सफल होंगे। उन सभी 3 शेष प्रतिभागियों से मेरी ऐसी उनके लिए कामना है। तो मैं इस क्रम में अब चाहूँगा कि प्रतिभागी पल्लवी वो यहाँ पर मंच पर आएँ और मैं निवेदन करूँगा मिस्टर नज़म सिद्दीकी से, जो अभी तक चैनल के हमारे सुहारा के रिपोर्टर हैं। मिस्टर नज़म वो आकर इस बच्ची को एक स्मृति चिन्ह और भेंट करें। और धन्यवाद मिस्टर नज़म। मैं निवेदन करूँगा अभी तक चैनल के एमडी मिस्टर शरद राजवंशी जी से कि मिस्टर नज़म सिद्दीकी जी को स्मृति चिन्ह देकर धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद शरद जी। मेरा आग्रह है अब हमारे प्रतिभागी नंबर 3 वाजिया से, जो ऑब्जर्वर से आई हैं, उन्होंने अपना अथक प्रयास किया और अंतिम प्रश्न के उत्तर में वह गलत उत्तर देने के कारण पिछड़ गई।
लेकिन उनका प्रयास सराहनीय है, उसके लिए सभी तालियों से उनका स्वागत करें। मेरा निवेदन है, हमारे बीच में एक हमारे गेस्ट यहाँ पर हैं, मिसेस श्रुति सक्सेना। मेरा निवेदन है कि इस बच्ची को स्मृति चिन्ह देकर इसका उत्साहवर्धन करें। बार पुनः निवेदन है एमडी मिस्टर शरद राजवंशी जी से कि हमारे इन गेस्ट को स्मृति चिन्ह देकर धन्यवाद ज्ञापित करें। शरद जी। इसी क्रम में एक और प्रतिभागी नंबर 6 भूमिका सैनी जो धामपुर से हैं, उन्होंने भी प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया, अपनी बुद्धि का परिचय दिया। किसी कारणवश वह सेमीफाइनल राउंड में पहुंचने में सफल नहीं हो पाई, लेकिन भविष्य में वो और अधिक अथक प्रयास से अपने आप इन राउंड से पहुँच कर अपनी विद्वता को सिद्ध करेंगी। मेरा निवेदन है, हमारे बीच में प्रियंका स्कूल की हिंदी विभाग के एचओडी मिसेस किरण शर्मा जी हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि इस बच्ची को स्मृति चिन्ह देकर इसका हौसला अफजाई करें। किरण शर्मा जी। धन्यवाद भूमिका। क्योंकि मंच पर सभी विद्यार्थी हैं और मैडम हिंदी विभाग के एचओडी हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि इनको अपने आशीर्वचन देकर इनका भविष्य के लिए कुछ इनका मार्गदर्शन करें। किरण शर्मा जी। धन्यवाद सर। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सब लोगों के बीच, आप सब लोगों को देखकर। हारना और जीतना ये तो जीवन का हिस्सा है। जब तक आप मैदान में उतरेंगे नहीं तो खेलेंगे कैसे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को यहाँ देखकर, और सब अच्छे ज्ञान के साथ इस मंच पर उतरे हैं, और आप लोग एक प्रेरक हैं बाकी और बच्चों के लिए भी। उनको प्रेरणा देकर जा रहे हैं, जो आगे जा रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई। जो आगे नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए भी बधाई कि वो दोबारा आएंगे दूसरी और ज़्यादा तैयारी के साथ, कुछ और अच्छा करके दिखाएंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत मैं एक बार पुनः कह दूंगा शरद जी को, कृपया मैडम को स्मृति चिन्ह देकर उनको धन्यवाद ज्ञापित करें। शरद जी। सभी प्रतिभागी और उनके साथ पधारे उनके गार्जियंस, माता पिता, उन्होंने यहाँ बैठकर उनका उत्साहवर्धन किया और हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाई। इसके लिए वो सभी गार्जियंस भी धन्यवाद के पात्र हैं। यह मंच अपनी ओर से उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। एक बार पुनः उन्होंने यहाँ आकर इस सभी प्रतिभागी उन्होंने क्या बोला, क्या कार्रवाई रही, इस सबको अपनी आंखों से देखा, और मुझे आशा है, विश्वास है कि भविष्य में वो अपने बच्चों को इसी तरह से प्रोत्साहित करते रहेंगे और उनके मार्गदर्शन में ये बच्चे ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहेंगे, सफलताएं पाते रहेंगे। तो इस मंच का एक बार फिर उन सभी को आभार और सद्भावना मैं इसी वचन के साथ सभी की कामना करता हूं कि भविष्य में सभी प्रतिभागी और दूसरे राउंड्स में जो हमारे जीते हैं, जो सेमीफाइनल में गए हैं, वह और आगे बढ़ें, फाइनल तक पहुँचें, फाइनल में विजयी बने, इसी कामना के साथ। और जो नहीं जा पाए हैं, भविष्य में उनके सुखद भविष्य की कामना के साथ मैं इस प्रश्नावली का अंत करता हूँ। धन्यवाद।